डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत में अवामी दौलत का गलत इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से कई अजला में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर मुकम्मिल नहीं हुई। खासतौर पर मुत्तहदा ज़िले खम्मम के कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स 10 साल में भी मुकम्मिल नहीं हुए। उन्होंने आज ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तुमला नागेश्वर राव के साथ मिलकर सेक्रेटेरिएट में ज़िले खम्मम के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खम्मम ज़िले में सीतारामा प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट्स के कामों में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तर्ज पर खम्मम ज़िले में ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स में भी भारी बदनुवानियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर बीआरएस हुकूमत ने भारी अवामी दौलत को लूट लिया। साबिक में राजू दम्मुगुड़ा इंदिरा सागर दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर सीतारामा प्रोजेक्ट तामीर करने का वादा किया था, लेकिन उसके काम अभी तक मुकम्मिल नहीं हुए। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2-3 రోజుల్లో సీతారామ సాగర్ సోర్స్ కాడికి పోయి మళ్ళోసారి విషయాన్ని మొత్తం పరిశీలించి ఆన్ సైట్ జరుగుతున్న విషయం ఏంది, ఎక్కడ ఏం చేయాలనే విషయాన్ని ద వే ఫార్వర్డ్ గురించి కూడా మేము ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. అంటే నేను ఒకటే విషయం మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇటువంటి సంఘటనలు చాలా అరుదైన సంఘటనలు. ఓ 10 కోట్లు పోతున్నాం, 20 కోట్లు పోతున్నాం, 50 కోట్లు పోతున్నాం, ఉద్యోగాలు పోతాయి, ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయి. 10 ఏళ్ల పాటు అసలు మేమేదో అద్భుతాలు చేస్తున్నట్టుగా భ్రమలు కల్పించి ప్రతి విషయంలో అబద్ధాలు చెప్పి అవతల నెట్టి తిట్టాలు తిట్టి, అంటే ఒకటే విషయం పట్టిగా చెప్పింది, నేను మళ్ళా గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు. 1500 కోట్లతో పూర్తయ్యే రాజీవ్ దుమ్ముగూడెం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ప్లస్ ఇందిరా సాగర్ స్కీమ్ 3,32,000 ఎకరాలు ఖమ్మం, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కొత్త ఆయకట్టు పూర్తయ్యేది. అప్పుడు అది రీడిజైన్ చేయకుంటే అప్పుడే పూర్తి అయ్యేది. ఇప్పుడు ఒక 3.5 lakh acres కొత్తగా ఖమ్మం జిల్లాలో పారేది. అది చేయక రీడిజైనింగ్ అని పెట్టి 1,700 కోట్లతో పూర్తయ్యేది. ఇప్పుడు దాని పూర్తి వ్యయం అంటే 18,000 కోట్లేమో సీతారాం సాగర్కి, మరో 4,000 కోట్లేమో సీతమ్మ బ్యారేజ్ అని పెట్టి 22,981 కోట్ల మించిందండి. అసలు ఇది ఏంటిదంటే, ఇది ఏమన్నా ఇది వాళ్ళు అసలు ఎవరి సొమ్ము, ఎవరి జాగీరు, అమూల్యమైన ప్రజాధనాన్ని ఏ విధంగా दुर्विनियोग చేసిన ఆలోచన చేయండి. वजीर सयाहत जूपली कृष्णा राव ने जुमे को इंकशाफ किया कि अपोजिशन बीआरएस के कई अरकान असम्बली पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। जुमे को गांधी भवन में ज़राया ब्लॉक के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वजीर सयाहत ने यह भी कहा कि बीआरएस से मुस्तफ़ी होने के बाद ये अरकान असम्बली कांग्रेस में शमूलियत के लिए भी तैयार है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि चंद दिन कबल बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडी संजय ने दावा किया था कि बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। इस दावे के पस मंज़र में वज़ीर सयाहत के इंकशाफ ने एक नई बहस छेड़ दी है। जूपली कृष्णा राव ने कहा कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में बीआरएस 2 या 3 सीटों से ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं करेगी। अट्लागे రైతు బంధు 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే హామీ 6 గంటలు ఇస్తే మీరు 16,000 ఇస్తామన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి 3,000 అంటే మీరు 4,000 అన్నారు. అంటే హర్రాజు పాడినట్టుగా ఓట్ల గెలుపు కోసం మీరు రకరకాల మాట. మరి మేము పెట్టినవి ఇప్పుడు చెప్పిన 6 గంటలు అమలు చేయలేకపోతే మీరెట్లా చేస్తామని పెట్టినవన్నీ కూడా మాట్లాడితే కొద్దిగానైనా ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలా, పద్ధతి వారు ఉండాలా. నేను హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ చాలా గొప్ప ఆయన ఏమని కేసీఆర్ బంగారు పల్లెములు పెట్టించినట కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం అంటే రాష్ట్ర ఖజానా అంటే ఇంతకంటే జూటా మాటలు ఉన్నాయా? ఎంతసేపు అన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎత్తుల్లో వినతో పెట్టిన విద్య వీళ్ళకు. ఆనాడు ధనిక రాష్ట్రాన్ని మీ చేతులు అప్పచెప్తే మీరు ఆనాడు గతంలో మీ ప్రభుత్వం అంటే నేను కూడా ఉన్నా బీఆర్ఎస్లో సందర్భంలో లెక్కలు చెప్పిన 2 లక్షల కోట్ల అప్పు, 2,50,000 ఉంది, ఇంత లేదు అంత లేదు, 1,50,000 కోట్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ప్రజలు కూడా నమ్మిరు, అందరూ నమ్మిరు. వాస్తవంగా
ఎందుకు మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ జీవోలు ఇష్యూ చేసినా ఆన్లైన్లో పెట్టలే, అంటే దాచిపెట్టి మూసిపెట్టిన చాలా విషయాలు దాచిపెట్టి మూసిపెట్టిన। साबिक मरकजी वजीर और तेलंगाना में कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज कहा कि मंदिर अकीदत की जगह होती है, सियासत के लिए नहीं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत से मुतालिक अखबारी नुमाइंदों के सवाल पर दीपा दास मुंशी ने कहा कि इस मामले में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत से कांग्रेस के इनकार पर बीजेपी की तनकीदों का हवाला देते हुए साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि कोई भी मंदिर जा सकते हैं और यह हमारी अकीदत का मामला है। हम सियासी मकासद के लिए या सियासी मकासद हासिल करने के लिए मंदिर जाया नहीं करते और ये हमारी अकीदत है। इस मसले पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने आज KTR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर KT रामाराव बिला वजह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने डाओस में अपनी सभी मीटिंग सभी मुकम्मल भी नहीं की, लेकिन साबिक वज़ीर KTR ने उनके मुख्तलिफ कामों को लेकर उन्हें निशाना बनाना शुरू किया और वज़ीर आला से सवाल किया जा रहा है कि उनके इस दौरे से तेलंगाना रियासत को क्या हासिल हुआ। नौकरी के वास्ते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वास्ते, तेलंगाना में नौजवानों को नौकरियों के वास्ते और तेलंगाना डेवलपमेंट के वास्ते गया। उसके ऊपर से बोल रहे हो तुम आज़ादी से कैसा मिले, कल तक चोर बोले। अरे भाई वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाना या इंडस्ट्री लगाना, नौकरियां मिलेंगे ना, डेवलपमेंट होंगे ना। तुम्हारे जैसे तुम बोले डेवलपमेंट के वास्ते गया तो तुम बोल रहे आपको भी गालियां दिए ना, दूसरा पार्टी वाले दिए नहीं दिए, आपको दिए, आपके पिताजी को दिए, तो बाद में उन लोगों को तुम अपने पार्टी में मिला ही नहीं मिला लिए। वो तो तुम्हारे को पार्टी का इंटरेस्ट है, हमको देश का इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है। तेलंगाना में लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवान आज बेकार है, नौकरियां नहीं है, उसी वजह से भी उन्होंने वहां जाके तेलंगाना को डेवलपमेंट का तो उसके ऊपर भी बयानबाजी कर रहे। अरे भाई आप नहीं गए, यहाँ गालियां देते, नरेंद्र मोदी से मिलके जाके वो पैसे दो ये पैसे नहीं पूछते क्या? अरे ये क्या, कल तक आप भी मिनिस्टर थे, ये बयानबाजी बंद करो भैया। आपको ये किए 6 डिक्लेरेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, 4 दिन में हंगामा हो जाएगा। अरे देखो रे भाई, हम 10 साल खामोश नहीं बैठे, 10 साल के बाद आवाम तुम्हारे को टुकड़ा दिए। आज कांग्रेस के ऊपर बिलीव है, सोनिया गांधी तेलंगाना दी, उसी वजह से 6 डिक्लेरेशन अमल करते बोल के आवाम पूरी हमारे को मेजॉरिटी देने के बावजूद भी ये बयानबाजी बंद करो भैया। ये डेस्परेट है, लोग परेशान है। अरे हमारा हुकूमत चले गया बोल के ऐसे बयानबाजी बंद करो भैया। लोग हंस रहे। एक ऑटो वाला बोला क्या साहब, 1 साल 1 महीना भी नहीं हुआ, ये BRS वाले 10 साल हम खामोश बैठे नहीं। एक सोनिया गांधी दिए तक तो देखो, रेवंत रेड्डी डेवलपमेंट कर तुम बोला, कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा, तो इन लोगों का क्या है बोलो। तो 6 डिक्लेरेशन होने के बाद BRS खत्म होता, दुकान बंद होता। उसी वजह से बड़े बड़े बदलाव आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाता, एक बोलता, उसके बाद डिक्लेरेशन नहीं होता, अमल नहीं होता। अरे भैया अमल करके बताएंगे। जो वो सोनिया गांधी के फैमिली में है, जो वादे करते वो निभाते। अब तो भी बंद करो। लोग शिकस्त दिए, उसको तुम कैसा फिर आगे बढ़ने का आवाम के पास। अरे तुम वोट डालने वाला आवाम है, हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम को वादा पूरा करेंगे। तुम करे क्या? हरिजन को CM बोले बनाए, 3 एकड़ जमीन दिए, हर घर को नौकरी दिए। अरे भैया ये कब तक चलाएंगे? अरे भाई 10 साल लोग खामोश बैठे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बात अपनी ज़बान से कही थी, वादे की शक्ल में उसका ऐलान किया था, लेकिन उनमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम वादों को पूरा करने तक BRS कांग्रेस को बख्शने वाली नहीं है।
तेलंगाना भवन में मेदक पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में BRS की हुक्मरानी को नाकाम हुक्मरानी करार दिया गया था, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। अवाम खुद उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और BRS पार्टी ने भी अपनी 10 साल कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आने के फौरी बाद 2 लाख रुपए ज़रई कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने कर्ज माफ़ी के बजाय किसानों से कर्ज की रकम हासिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं। इसके अलावा कर्ज की रकम अदा ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत दी जा रही है। इस तरह की इतलात अखबारात में शाया हो रही हैं। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने बेरोजगार नौजवानों को हर माह भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस तरह के किसी भी वादे की तरदीद कर दी। साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने श्रीशैलम और नागार्जुना सागर आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत लाने से मुताल्लिक़ इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस अंदेशे का इजहार किया कि ऐसा करने से तेलंगाना पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जुमे को तेलंगाना भवन में ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकज़ कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के तहत श्रीशैलम और नागार्जुना सागर आबपाशी प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल हासिल करने का ख्वाह है और ये रियासत के लिए ठीक नहीं होगा। साबिक वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना के मफादात के लिए पानी इंतहाई अहम है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मसले में फौरी मुदाखलत करते हुए मरकज़ को अपने इक़दाम से बाज रखे। చాలా కథనాలు పత్రికల్లో వస్తా ఉన్నాయి। ఈ విషయం ఏంటి, ఈరోజు ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులన్నింటినీ కూడా KRMBకి అప్పచెప్పడానికి నిన్నగాక మొన్న ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో ఒప్పుకున్నారని, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ KRMB పరిధిలోకి పోతున్నాయని చెప్పి వార్తలు వచ్చాయి. అంటే కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మొన్న జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్,